Okay. So today we are dealing with the mind mapping tools. Anyone has any idea with the name what kind of the software we supposed to learn and what is the utility of this kind of software? Anything that comes in your mind? Any idea? You must have seen this thing when I have given or shared with you this meeting link. I have given the heading mind mapping tools. What kind of the tools it is? Anything? No, nothing like that. Okay. Uh, do you use any app or a particular software to create a particular diagram? Let us say if I have to create the pie charts or the bar charts or the flow charts, then which software we will use? R program. R programming that you have learned in first and second class, right? Not, I am asking not in this one, before this add-on. Let us say I have given you an assignment that you have to create a flow chart and submit me by today in 10 minutes. Then from which software you will draw? What comes first in your mind? How we will start? Come on, it's an interactive class. आप लोग बोलोगे नहीं, खाली मुझे बोलना है तो मुझे तो मजा ही नहीं आएगा पढ़ाने में. वर्ड, यस. डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन वर्ड? क्योंकि मेरे भी सबसे पहले माइंड में वर्ड या पावर पॉइंट आता है कि उसके अंदर इंसर्ट शेप्स होता है, तो ऑब्वियसली आई विल टेक दिस शेप्स एंड ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम और अ फ्लो चार्ट ऑन माय कन्वीनियंस, राइट? डू यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन वर्ड? मुझे ऐसा फीडबैक तो नहीं दिया था किसी ने भी कि आप लोगों में से कोई मुझसे बात ही नहीं करेगा. मैं बनाया नहीं कभी. बनाया नहीं कभी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. मैं आप लोगों को अब नेट पे लेके जा रही हूँ बिकॉज वी हैव टू डाउनलोड दी सॉफ्टवेयर्स एंड विद द सॉफ्टवेयर वी विल मेक दिस वर्ड डायग्राम और द फ्लो चार्ट डायग्राम और एनी काइंड ऑफ डायग्राम वर्क इन अ वेरी कन्वीनियंट वे, इन अ वेरी क्विकली वे. सो वी विल लर्न, क्योंकि आप लोग सब लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो सूनर और लेटर ऑब्वियसली आप लोगों को प्रेजेंटेशंस देनी होंगी. तो प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी दें हम जिसके अंदर एक ही स्लाइड में एवरीथिंग इज गिवन. Whether you want to open the report, whether you want to open any statistics diagram, whether you want to depict any particular thing, whether you are generating any idea and you want to collaborate with your friends simultaneously कि मैं तो बना रहा हूँ, मुझे उसके अंदर आप लोग सब collaborate करें. So we have the online software for that and we will work simultaneously कि एक आपको दिमाग में आ रहा है, एक दूसरे को दिमाग में आ रहा है. So how we will work. So I am sharing my screen and simultaneously you people will do the same thing with me. Write down on your Google Mind Master download. I am repeating. Is my screen visible? Yes, Please ma'am. check. Okay. So write down this word Mind Master download. It is a software. So when you will do this Mind Master download on Google, your page will look like this. यहाँ तक डन है? पहुंच गए सब लोग? बच्चे साथ साथ बोलते रहिएगा, अदरवाइज हाउ विल आई कम टू नो वेदर यू विल एबल टू फाइंड आउट दिस पेज और नॉट. यस मैम. ओके, तो आपको जो फर्स्ट विंडो ही दिख रही है www.edrawsoft.com, क्लिक ऑन दैट, द फर्स्ट वन जिसमें इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखा है ऑफिशियल. ऑफिशियल माइंड मास्टर बेस्ट माइंड मैपिंग टूल. सो जस्ट क्लिक ऑन दैट. और जो पहला टैब ही आ रहा होगा उसी में देखिए आपके लिए लिखा आ रहा है फ्री डाउनलोड. कैन यू सी? यस मैम. Okay, great. So download it. It will take time. Obviously, it's a software.
आई होप आप सबको पता होगा। डाउनलोड करने के बाद .exe फाइल आएगी, फिर वो बोलेगा कि exe फाइल को रन कर दें क्या आपके हार्डवेयर में। सो यू हैव टू क्लिक यस। Yes, ma'am. कीजिए कीजिए, और जिन लोगों का डन हो जाए वो हैंड रेस करते रहिएगा। It will hardly take 2-3 minutes in downloading this software. Whenever you will download it and open it, so your window will look like this, और कोई ऐसा साइन होगा, this crisscross bow ribbon जैसा with a green one. This sign will be there. So Mohammed has done this download work. We are waiting for others. Udit has done 2, 3, 4, 5. Good. 6, 7, 8, 9, 10. I want hand raise from everyone. Still people are downloading. It's okay. Download will take time. जिन लोगों ने हैंड रेज करे हैं, कीप इट हैंड रेज्ड ओनली सो दैट कि अदर्स विल आल्सो जॉइन योर क्यू. ओके ओके. निशांत, संचित, सुनम, still left. Ayushi, Shaurya. Still students left. Lot of students left. ओके जिन लोगों ने कर लिया है वो हैंड डाउन कर लीजिए, और जो लोगों का भी डाउनलोड हो रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स, क्योंकि इन टोटल मुझे 16 स्टूडेंट्स के हैंड दिखे. इट इज स्टिल डाउनलोडिंग. संकल्प, खुशी, चिराग, सजल. ओके, no problem. Take your time. We will start with your work only. 3, 2. Because today we need internet only. We need lot of internet. क्योंकि आज मैं आप लोगों को बेसिक्स नहीं पढ़ा रही हूँ. We are learning some good new softwares. जितने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, या आप लोग मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कहीं कहीं पर प्रो वर्ड लिखा है. कैन यू सी? प्रो वर्ड इज हाईलाइटेड. ओके, ओनली चिराग अरोड़ा लेफ्ट. The pro word means that it is the paid version. अगर आप लोगों को वो वाले जो फिगर्स हैं जो प्रो में दिख रहे हैं, जैसे एरोप्लेन राइट लेफ्ट और बहुत सारा क्रिस क्रॉस दिख रहा है, इफ यू वांट टू यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो फिर आप लोगों को पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा. बट बिकॉज वी आर लर्निंग द सॉफ्टवेयर, सो वी विल लर्न द बेसिक्स एंड वी विल लर्न इट विद द फ्री डाउनलोड अवेलेबल. मैम टॉरेंट से डाउनलोड हो जाएगा मैम प्रो वर्जन.
हाँ, तो आप लोग कर लीजिएगा टॉरेंट से डाउनलोड। मुझे नहीं आता, मैंने ऑफिशियली साइट से जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है जितना फ्री अवेलेबल था वो मैं आपको दिखाऊंगी। जो प्रो वर्जन के फीचर्स हैं, ऑब्वियसली जो पेड वर्जन के फीचर्स हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, सो दैट कि आप सूनर और लेटर, जैसे सुधांशु ने कहा टॉरेंट से डाउनलोड हो जाएगा, सो यू विल एक्सप्लोर इट, राइट। चिराग, व्हाट हैपेंड? अभी नहीं हुआ डाउनलोड? ओके, डन। शेल वी स्टार्ट विद दिस वन? तो अब मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, सो ऑब्वियसली आई एम स्टार्टिंग विद द बेसिक वन एंड आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, रेडियल मैप। रेडियल मैप हम लोग साथ साथ ड्रॉ करेंगे, आप लोग अपना ड्रॉ करेंगे, मैं अपना ड्रॉ करूंगी, बट पहले मुझसे ब्रीफिंग ले लीजिएगा, क्योंकि हम साथ साथ करेंगे तो हमें मजा भी आएगा। सम एक्टिविटी विल गोइंग ऑन। मेरा माई स्क्रीन इज विजिबल ना? ऑन माई स्क्रीन आई हैव ओपन दिस बोर्ड, मैंने बस उसको रेडियल मैप को क्लिक कर दिया है, सो दिस होल बोर्ड इज ओपन। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले लिखा है व्हाट इज योर मेन आइडिया। सो माइंड मैपिंग ऑलवेज हैव अ सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया। सो लेट अस से मुझे किसी ने बोला है, आज मुझे एक टास्क मिला है कि बेटा मुझे ना 1 घंटे बाद आप बता दो कि आपके बीकॉम ऑनर्स के अंदर क्या क्या सेमेस्टर्स हैं और कितने कितने कोर्सेज हैं और हर एक के अंदर क्या क्या available options हैं. So I have this task and I want to draw it in a very beautiful manner so that I can explain this thing in a detailed manner. So we have nothing to do with this. क्या आप लोगों को ये दिख रहा है जब आप इस पे प्रेस कर रहे हो, वन प्लस साइन इज कमिंग साइमल्टेनियसली? इज इट कमिंग एट योर बोर्ड ऑल्सो? आपने कहीं लॉगिन नहीं किया है, कुछ नहीं करा है, ये डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर एंड इट इज वर्केबल। आप लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने जिन्होंने भी ज्वाइन किया वो सबने सॉफ्टवेयर के लिए ज्वाइन किए हैं। सो प्लस साइन यूज करो ना करो, यू कैन यूज दिस सिंपल शॉर्टकट की एंटर। तो चलो एंटर दबाते हैं, क्या हुआ। सो एंटर के बाद उसने बोला एक टॉपिक। मेरे को अगर बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस बनाना है, हाउ मेनी सेमेस्टर्स वी हैव इन टोटल? 6। दैट मीन्स अगर मुझे थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन का भी ध्यान रखना है, आई विल ट्राई टू क्रिएट 3 ऑन द लेफ्ट एंड 3 ऑन द राइट। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई हैव नथिंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस एंटर एंटर एंटर। तो मैंने दूसरी बारी एंटर प्रेस किया, मैंने तीसरी बारी एंटर प्रेस किया, 3 ब्रांचेस राइट में अपने आप ओपन हो गई। देन आई मूव टूवर्ड्स माई लेफ्ट और मैंने अपने कर्सर को लेफ्ट की तरफ छोड़ दिया। अगेन आई प्रेस्ड एंटर, तो वो लेफ्ट की तरफ एक ब्रांच निकली आई। विल यू एबल टू वर्क विद मी? काम कर पा रहे हैं आप लोग मेरे साथ? यस मैम। ओ ग्रेट। तो मैं 1 मोर टाइम एंटर एंड 1 मोर टाइम एंटर। तो मुझे बताया गया अभी कि 6 सेमेस्टर्स हैं, सो आई एम राइटिंग ओवर हेयर GGS IPU सिलेबस ऑफ बीकॉम ऑनर्स। ओहो, ये तो बाहर चला गया। तो बाहर नहीं जाएगा, आपने जितना भी टाइप किया है, जब आप इसको एंटर कर दोगे वो ऑटोमेटिकली उस शेप के अंदर ले लेगा। तो मुझे शेपिंग की मेहनत नहीं करनी, जैसे मुझे वर्ड में या पीपीटीज बनाते हुए पावर पॉइंट में शेपिंग की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इधर से ड्रैग करो उधर से ड्रैग करो। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, आई एम जस्ट राइटिंग सिंपल थिंग्स और ये अपने आप ओपन होता जाएगा। Then I want to change my main topic, so I just double click it. और यहाँ पे मैं लिखना चाहती हूँ आपका फर्स्ट सेमेस्टर। Then I want to write over here second semester. ऊपर जितने भी टैब्स है I will tell you, don't worry, हमारे पास more than 1.5 hour है। फोर्थ सेमेस्टर साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी रहेगा। एंड 5th सेमेस्टर, और मैं किसी को भी बोलूंगी बीच में स्क्रीन शेयर करने को। 6th सेमेस्टर, राइट। तो मुझे बताया गया 6 सेमेस्टर है। डू वी हैव एनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ईच सेमेस्टर? डू वी हैव? Yes, ma'am. Okay, so what we will do,
देखो अब ऊपर ना ये वाले टैब को समझा रही हूँ। पहले पहला टैब लिखा टॉपिक, वी हैव ऑलरेडी गिवन दिस टॉपिक, और शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं। प्रेस एंटर फॉर द टॉपिक, तो हमने एंटर कर दिया था। टॉपिक बिफोर शिफ्ट प्लस एंटर, पेरेंट टॉपिक शिफ्ट प्लस इंस। व्हाट इज पेरेंट टॉपिक? मिड वाला। मिड वाला, दैट्स इट्स पेरेंट टॉपिक। ये वाले हो जाते हैं हमारे सब टॉपिक। और अब मैं सब टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक चाहती हूँ, तो आई कैन यूज दिस मल्टीपल टॉपिक्स। अब ये इन्होंने ऊपर भी दिया है और इन्होंने कहा है कि नहीं, इसको नहीं यूज करना, इट्स ओके। मैं तो आपको यहीं पर ही प्लस का साइन दे रहा हूँ, यूज दिस। जब मैंने प्लस का साइन प्रेस किया एक बारी, तो एक आइकन आ गया और ब्रैकेट में लिखा आ रहा है उसके सब टॉपिक। बट मुझे पता है मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कोर्स सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। तो दैट मींस मुझे 6 सब टॉपिक चाहिए। सो हाउ मेनी टाइम्स आई एम गोइंग टू प्रेस दिस एंटर? 6 टाइम्स। तो ये बन गए मेरे 6 सब टॉपिक्स। अब मुझे लेबलिंग करनी है इन टॉपिक्स की, क्योंकि ये हर जगह पे सब टॉपिक लिखा है। तो लेट मी लेबल इट। एक लेबलिंग का तरीका इन्होंने ये बताया है कि यहीं पर ही डबल क्लिक करो और लिख दो जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम में। लेटर से आई एम राइटिंग MPOB, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। FA इज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ME is your microeconomics, BC is your business computation, then CA is your computer application, and you have one CA lab. So that's it in your first semester. Again, we will move to our second semester, and then we have again the same subtopics. So how many subtopics we have? 5, ओके 6। तो अब मुझे इन 6 के नाम भी देने हैं। मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल इन राइटिंग ओवर हेयर, ये मुझसे क्लिक डबल क्लिक नहीं हो रहा है। देन व्हाट विल आई डू? तो पहले मैं सारी ब्रांचेस बना लेती हूँ, और इसका इन्होंने शॉर्टकट की भी पैनल पे दिया है, सो वी विल यूज दैट शॉर्टकट की। सो लेट अस से इन थर्ड सेमेस्टर आल्सो वी हैव 6 टॉपिक्स। विल यू एबल टू डू मैम विद मी? हाँ मैम जी, मेरे में मैम प्लस का साइन नहीं आ रहा, जो आप आएगा आएगा। अच्छा ऐड का देख, साइन। मैं बताती हूँ। ये देखिए, जब तू इस कर्स यहाँ पर इस जिस भी बक्से पे टच करोगे ना बेटा, उसके कोने में आएगा। और अगर प्लस का साइन नहीं भी आ रहा ना, व्हेन यू विल प्रेस एंटर, इट विल ऑटोमेटिकली कम इन द टॉपिक एंड सब टॉपिक। दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी स्मार्ट, ट्राई कर। आ रहा है एंटर से? नहीं मैम, नहीं आ रहा। मैम एंटर से तो आ रहा है मैम, वैसे नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं। ये प्रेमचंद्र कौन है जी? एनीवन नोज हु इज दिस प्रेमचंद्र? भैया एडमिट करूं नहीं करूं? चलो लेट मी एडमिट एंड लेट मी सी। हाँ जी, ये प्रेमचंद्र जी कौन है? द पर्सन हु हैव जस्ट जॉइंड दिस मीटिंग। यस प्लीज। तुम लोगों के टीचर तो नहीं है किसी के जो बाहर से आए हुए हमारे पास बच्चे? चलिए मूव ऑन। अब मुझे 5th सेमेस्टर में भी एंटर से वर्किंग ना, इज इट वर्किंग और मैम नॉट? सब टॉपिक नहीं हो रहा मैम, एंटर से भी अच्छा प्लस भी नहीं एंटर आ रहा से, और वो भी नहीं आ रहा। अच्छा ये करो। यस मैम। और इंटर से फ्लोटिंग आ रहा है, फ्लोटिंग टॉपिक। नहीं, इंसर्ट फ्लोटिंग टॉपिक नहीं करना है। देखो, अगर ये करो, अगर इस पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट, तुम्हारे में क्यों नहीं आ रहा? मेरे में तो अब भी आ रहा है। ये देख मैंने क्या किया, मैम आपके पास इसको दूसरा बॉक्स को, वर्जन है, हमारे पास दूसरा वर्जन है मैम। बट दिस इज द लेटेस्ट वर्जन दैट आई हैव। I have downloaded day before yesterday only for you people. मैम ऊपर वाले टॉपिक ऑप्शन पे क्लिक करके आ जाए। हाँ मैं ये तो कह रही हूँ, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, इस बॉक्स को सेलेक्ट करो और ये सब टॉपिक करो। मैम टैब प्रेस करेंगे उससे हो जाएगा। हाँ राइट, टैब से भी होता है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये इसकी शॉर्टकट कीज है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है बच्चा, टैब से भी होएगा, एंटर से भी होएगा, दोनों से होएगा। देखो,
और चलो 6 सेमेस्टर में भी मैं फटाफट एंटर कर देती हूँ। ओहो, मेरे में मेन टॉपिक सेलेक्ट हो गए। So I have created a very big one with this version. मैंने हर जगह पे कहीं पर ही 5 क्लिक कर दिया, कहीं पर ही 6 क्लिक कर दिया, so that I have a very big graph of IP University BCom Honors syllabus, because I want to show in a one picture, in a one mind map, किस किस तरीके के टॉपिक्स या किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स मैं आईपी यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। सो दैट इज माय टास्क एंड आई वांट टू मेक इट अ ब्यूटीफुल विद दिस डायग्राम। राइट, यहां तक सबका डन? एनीवन इज लेफ्ट बिहाइंड? बढ़ सकते हैं आगे? मुझे कोई सिग्नल देगा Yes, सो दैट ma'am. आई कैन प्रोसीड। ओके, तो यहाँ पर देखो एक ना ये 3 टैब लाइन है, जिसको अगर आप क्लिक करोगे तो आउटलाइन वर्ड लिखा है। कैन यू सी? क्लिक दिस वन। और एक लंबी सी लिस्ट आ जाएगी। आ रही है क्या आप लोगों में? इट्स अ लॉन्ग लिस्ट। इज इट कमिंग? सब अपना अपना एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू चेंज ऑल माय सब टॉपिक्स नेम, क्योंकि मुझे वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाना। सो आई हैव यूज दिस वर्जन ऑफ आउटलाइन, और मैंने आउटलाइन वर्ड के अंदर फटाफट शॉर्टकट में लिख रही हूँ, जैसे बिजनेस मैथमेटिक्स। मैम आउटलाइन कहाँ से आया? बेटा ये देखो, ये 3 डॉट वाली, ये 3 लाइन दिख रही है, ये वाली, दिस, कैन यू सी माई कर्सर? मैम हम लोग में नहीं है अभी। मैम जो हमारे वर्जन में है वहाँ हमारे पे में नहीं आ रहा यहाँ मैम। पे नहीं आ रहा आउटलाइन। अच्छा, वो होम की बार में आ रहा है, ऊपर साइड में, माइंड मैप के साइड में। आ, अच्छा तो वहां से कर लो ये, बट साइन मस्ट बी सेम। यस ऐसे ही मैम। आ रहा है, ठीक है, तो कर लो वहां से। बेसिक पर्पस इस आउटलाइन का यही है कि ये जो इतने सारे सब टॉपिक्स मुझे लिखने हैं, क्योंकि मुझे ब्रांचेस टू ब्रांचेस जाने में दिक्कत होती है, ये अपने अपने कंफर्ट की बात है। मैं कहती हूँ मैं इन्हीं डब्बों में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो आई कैन एडिट ओवर हेयर। मैं कह रही हूँ मैं यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो आई कैन एडिट ओवर हेयर। सो दैट इज द टू वे ऑफ यूजिंग द सेम थिंग। आई एम जस्ट गिविंग द नेम टू दिस टॉपिक्स, तो आप भी अपने इनको कोई भी नाम दे दो। वी आर जस्ट गिविंग इट। तो मेरे को जितने भी सब्जेक्ट्स पता हैं, आई एम जस्ट गिविंग दिस नेम्स। BECSR आप लोगों का बिजनेस एथिक्स का पेपर है, BS का पेपर है, और साइमल्टेनियसली आप देखोगे मेरे पैनल में चेंजेस होते जा रहे हैं। कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर का पेपर है, देन आई हैव द पेपर ऑफ FM, RM, FM मॉडलिंग, ये तो ताजा ताजा याद होगा हमारे बच्चों को। FM मॉडलिंग लैब, होना गया था। RM लैब, and corporate accounting. Now in the 6th semester, 5th semester, you have ITLP, then you have ED paper, और कौन से पेपर है? SDM, अभी तो MCQ होके चुके हैं तो याद होंगे। IM, ISM, राइट। और 6th सेमेस्टर में आ जाते हैं, so we have project management, then we have different papers, GST, तो एक और टैक्स पढ़ेंगे आप लोग तब, then we have E-Com, then we have E-Com lab, and let us say we have research project, and the last one is ES. सो मुझे जितने सब्जेक्ट याद आए मैंने सारे के सारे फिल कर दिए अपने आउटलाइन से, और ऑटोमेटिकली मैं ये देख रही हूँ मेरे पैनल में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो रहे हैं। एवरीवन इज विद मी? यहां तक हम आ गए? आगे बढ़ सकते हैं? सो नाउ
I want to use this powerful tools. मेरे पास ये वाले जो tabs हैं. So we will look up one by one. I think this one is clear to everyone. Paste, cut, copy, format, printer कि एक जैसे से लगे, apply to all हो, ये हम हर जगह पे use करते हैं. Topic, subtopic, floating topic. Now what is floating topic? So we will look at this. तो मैंने वहां पर क्लिक किया और नीचे जहां पे मुझे फ्लोटिंग टॉपिक चाहिए था, आई जस्ट पुट इट अप ओवर हेयर, राइट. अब मुझे इस फ्लोटिंग टॉपिक में लिखना है, लेट अस से बेनिफिट्स ऑफ कोर्स. सो आई हैव गिवन दैट बेनिफिट्स ऑफ कोर्स. फिर मैंने एक और बारी फ्लोटिंग टॉपिक क्लिक किया और मैंने नीचे की साइड यानी जीजीएस आईपीयू सिलेबस के जो नीचे की साइड है उसके नीचे दिखा है. फिर यहाँ पे लिखा मैंने रिक्वायरमेंट्स या लिखते हैं करियर फॉर स्टूडेंट्स आफ्टर परसुइंग दिस कोर्स. क्या आपको लग रहा है कि आप करियर कुछ कर सकते हैं? तो ये मेरा यहाँ पे हो गया है. अब नाउ आई वॉन्ट टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, somebody has written something for me. आप लोगों ने किसी ने कुछ लिखा है क्या चैट स्क्रिप्ट पे? ओके, नथिंग इज लाइक दैट. यहाँ तक सब पहुंच गए हैं मेरे साथ और ये मेरे से एक मेन टॉपिक और ऐड हो गया है. सो मैंने सिंपल डिलीट बटन प्रेस किया एंड इट इज डिलीटेड. अब मेरे को रिलेशन डेवलप करना है. आई वांट टू क्रिएट अ रिलेशनशिप. ये जो फ्लोटिंग टॉपिक है क्या ये रिलेटेड है बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स और करियर फॉर द स्टूडेंट? तो मैं अब इसको रिलेट करना चाहती हूँ. आई जस्ट वांट टू रिलेट दिस. अब मेरे को किससे रिलेट करना है? मुझे तो इससे रिलेट करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. तो मैंने उसको ड्रैग किया और जो वो कर्सर आया था जहां तक मैं ले जाना चाहूं वो वहां तक चला जाएगा. सो दैट विल क्रिएट अ लूप, दैट विल क्रिएट अ रिलेशनशिप. और उससे मुझे लग रहा है थोड़ी ब्यूटिफिकेशन भी अच्छी लगी. नाउ आई वांट टू क्रिएट वन मोर लूप और मैंने एक लूप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है. कैन यू सी दिस लूप? Will you able to draw? कर पा रहे हैं ड्रॉ? अब मुझे इस रिलेशनशिप में कुछ लिखना भी है. लेट अस से क्या लिखें? बेनिफिट्स ऑफ द कोर्स. क्या लिखें? स्टूडेंट्स. आई जस्ट रिटन ऑन दिस लूप स्टूडेंट्स. और करियर फॉर स्टूडेंट्स तो मैंने यहाँ भी लिखा माई फोकस इज ऑन स्टूडेंट्स. ये दोनों लूप के अंदर मैं लिख भी सकती हूँ सो दैट ये पता हो कि आप कनेक्टिविटी किसका और किसके साथ चाहते हो. मैं चाहूं तो मैंने ये रिलेशनशिप बार उठाया, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से कर दिया. मैं चाहूं तो मैंने ये बार उठाया और सेकंड सेमेस्टर से कर दिया. अब मुझसे ये गलत ड्रॉ हो गया है. आई वॉन्ट टू इरेज दिस. व्हाट इज द मेथड ऑफ इरेजिंग दिस? तो आपने उसको सेलेक्ट करना है और डिलीट प्रेस कर देना है. सिमिलरली सेलेक्ट करना है, डिलीट प्रेस कर देना है. तो अगर कोई गलती हो जाती है हमारे को माइंड मैपिंग क्रिएट करते हुए, इट इज इजिली एडिटेबल. क्या यहाँ तक सब पहुंच गए मैम? भाई? साथ साथ में हाँ बोलो. रिलेशनशिप के साथ ना एक टेप बॉक्स और बन रहा है मैम. हाँ, जब एंटर करोगे तो वो बॉक्स गायब हो जाएगा. अदरवाइज यू कैन डिलीट दैट टेबल. वो जो रिलेशनशिप का लूप है, जैसे मैंने उसमें स्टूडेंट्स लिखा है, वो डब्बा उसके लिए आ रहा है. दैट इफ यू वांट टू लेबल, इफ यू डोंट वांट टू लेबल, दैट्स ओके, राइट? सो इट इज एन ऑप्शन. क्लियर है ये बात? आगे बढ़े. अब सेकंड ऑप्शन कॉल आउट की. तो डिलीट कॉल करने पे वो लाइन भी डिलीट हो रही है. अच्छा, तो दोबारा एंटर कर ले, दोबारा रिलेशन ले और क्लिक कर ले और फिर से क्लिक कर और डिलीट कर दे.
इट हार्डली अ मैटर ऑफ 2 मिनट्स। बॉक्स में तो गड़बड़ नहीं हो रही ना हमारी। सेकंड फीचर एक्सप्लेन करूं? बताइए बेटा, आगे बढ़ूं या रुकूं अभी? यस मैम। ओके, अब मुझे एक सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, कॉल आउट। यूजुअली वी विल यूज कॉल आउट प्रोसेसेस टू रिमेम्बर द इम्पोर्टेंट आइटम्स, कि मुझे यहाँ पे फोकस करना है या मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने हैं, सो आई एम जस्ट मेकिंग दिस जेस्चर। अब लेट अस से मुझे तो बिजनेस मैथ से जब भी आता है बहुत डर लगता है, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद द मैथ्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने इस बॉक्स को सेलेक्ट किया एंड देन आई क्लिक दिस कॉल आउट। सो कॉल आउट ऑप्शन मुझे बोलती है आप इसके अंदर लिख लो हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। मैम प्लीज सो रिपीट। मैंने सॉरी। हाँ बेटा, मैंने अब ये कॉल आउट ऑप्शन बताई। सो फॉर द कॉल आउट ऑप्शन मुझे एक कॉल आउट ऑप्शन दिया जाता है कि जिसको हम आप लोगों की स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि वट एवर कम्स इन योर माइंड यू वांट टू डिपिक्ट दैट पॉइंट्स टू दैट पर्टिकुलर आइटम्स इन योर डायग्राम, इन दिस बिग डायग्राम। तो अब मैं उस पर्टिकुलर बादल को हिंदी में अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे वो छोटे छोटे बल्ब जो बने आते हैं उनको कैसे दिखाऊं। सो दिस ऑप्शन इज गिवन कॉल आउट। अब इसको यूज कैसे किया मैं एक बार दोबारा बता रही हूँ। मेरे को बिजनेस मैथ्स, मैंने बीएम लिखा सेकंड सेमेस्टर में, आई हैव अ वेरी बैड प्रॉब्लम विद दैट। सो आई जस्ट सेलेक्टेड दिस बॉक्स एंड आई जस्ट सेलेक्टेड दिस कॉल आउट। जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया दिस दिस बॉक्स विल कम आउट और इस कॉल आउट के अंदर मैंने लिख लिया हार्ड वर्क रिक्वायर्ड, कि भाई कभी भी बीएम पढ़ना है तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बड़ा ही टफ है, हार्ड वर्क कीजिएगा। सीए लैब, आई वांट टू ऐड कॉल आउट ओवर देयर। क्या लिखें? कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल, क्या लिखें? व्हाट वर्ड्स कम्स इन योर माइंड, बिकॉज इट इज अ माइंड मैपिंग टूल। तो आपको भी मेरे साथ अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे आइडियाज बताने हैं, सो दैट वी कैन पुट इट एंड वी विल मेक अ वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम विद दिस। क्या लिखूं फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन लैब? व्हाट विल यू फाइंड? इंफॉर्मेटिव। ओके, वेरी गुड। सो आई एम राइटिंग द वर्ड इंफॉर्मेटिव। अब ये बॉक्स से बाहर जा रहा है बट व्हेन आई विल एंटर इट विल ऑटोमेटिकली कम इन द बॉक्स। तो मुझे बॉक्सेस के डायग्राम की, मेजरमेंट की, हाइट की, विड्थ की, इनकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ये अपने आप कर लेता है। ओके, व्हाट वुड यू वांट टू राइट फॉर द इनकम टैक्स? लेट अस, आई वांट टू ऐड कॉल आउट ओवर हियर आईटी। जल्दी जल्दी बोलिए, मजा तो तभी है इसमें। क्या बोला? नहीं समझ आया। चैट पे लिख दिया, आई कैन रीड फ्रॉम द चैट। नथिंग इज ऑन द चैट। Oh, tough. Right. So I'm writing the word tough. हाँ जी, और कौन से पेपर के लिए लिखना चाहते हैं? बिकॉज यू पीपल आर नॉट इन 6 सेमेस्टर, सो यू डोंट नो अबाउट दैट। सो वी विल मूव टू द थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में पिक एनी पेपर। टेली, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है ना ये, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर। सो आई वांट टू ऐड कॉल आउट ओवर हेयर। क्या लिखूं? somebody fun, somebody Accounts. right. सो अकाउंट्स, क्योंकि बहुत टैली के अंदर मैम डेबिट क्रेडिट पूछती रहती है। बिल्कुल ठीक बात बताइए इसने, अकाउंट्स। आई वांट टू ऐड कॉल आउट ऑन द आरएम लैब। RM lab. So I am using the word research. It is totally research oriented, so I am using the same word.
So we have the environmental science. I am using, let us say, one more call out, fun time pass, क्योंकि ये NUES का पेपर है तो मुझे ये बहुत ही इजी लगता है, राइट। तो मैंने कॉल आउट ऑप्शन से ये सब चीजें इतने डेकोरेटिव वे में प्रेजेंट कर ली हैं, और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के आगे मैंने चूज करके ये आइडियाज जनरेट करे हैं, दैट इज डिपिक्टेबल एंड विजिबल टू एवरीवन। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, बाउंड्री। लेट अस से दिस इज द थर्ड सेमेस्टर। मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने ऑप्शन क्लिक कर ली बाउंड्री। सो दे विल क्रिएट अ बाउंड्री। वो जैसा डायमीटर होगा दैट काइंड ऑफ बाउंड्री विल बी क्रिएटेड। सो मैं सारे सेमेस्टर्स के लिए, क्योंकि आई एम वेरी स्पेसिफिक, कि जब मैं अपना ये आप लोगों को माइंड मैपिंग टूल दिखाऊं, मेरे बिना बताए आपको पता लग जाना चाहिए कि ये भाई किसका पार्ट है, ये भाई किसका पार्ट है। सो आई एम क्रिएटिंग ऑब्वियसली 6 बाउंड्रीज फॉर द 6 सेमेस्टर। सो बाउंड्री कर पा रहे हो? कुछ नहीं करा है मैंने, बस सेलेक्ट करा है उन सबको और बाउंड्री। और सेलेक्ट भी कैसे किया है, बस कर्सर को ऊपर से नीचे घुमा दिया है, सेलेक्ट जैसे करते हैं हम नॉर्मल एरियाज, एंड आई हैड क्लिक द बाउंड्री। मैंने बाउंड्री के अंदर भी कुछ नहीं क्लिक करा है, जैसा शेप है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। सो बट इट हेल्प मी इन द ब्यूटिफिकेशन ऑफ माई गॉड। तो मेरा बाउंड्री कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ भाई, आया समझ में यहाँ तक? Shall I move to my next one? हमें एक बारी दोबारा बताना बाउंड्री। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस पूरे को ऐसे करके सेलेक्ट कर लिया है और बाउंड्री वर्ड को क्लिक कर दिया। देखो उसके अंदर शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जब आप दबा दोगे तो आपकी बाउंड्री इंक्लूड हो जाएगी जहां जहां पे आपने वो लेवल सेलेक्ट किया हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करूं, इफ एवरीवन इज ओवर विद दिस बाउंड्री पार्ट? Yes, ma'am. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज समरी। जैसा नाम वैसा काम। उसमें क्या लिखा है, ऐड दी समरी। इफ यू वांट टू ऐड सम डिटेल यू विल क्लिक दैट टैब, और वो टैब को क्लिक करके समरी बटन आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ बेनिफिट्स ऑफ कोर्सेज के अंदर एक समरी। क्या बेनिफिट है भाई बीकॉम ऑनर्स करने से, कौन बताएगा? You will able to learn business and commerce applications। तो मैंने एक समरी ऐड कर दी है। फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ के आपको क्या समरी मिलती है यहाँ ऐड कर सकते हो। कौन कौन से करियर हैं, चलो करियर वाले पे समरी लिखते हैं। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं। So CA I can pursue, CS I can pursue, CFA I can pursue, MBA I can pursue, and so on. So I have written the 4 options that just come in my mind. तो आप इसके अंदर जितना भी लिख सकते हो समरी में वो मेंशन कर सकते हो। सो दिस इज द वे ये 4 टूल्स यूज करने का, रिलेशनशिप, कॉल आउट, बाउंड्री, समरी। यहां तक क्लियर? Shall I move to my next window? Next tab? What is this? Mark. अब मुझे मार्क करना है तो हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। है क्या ये मार्क? देखो जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे राइट में एक बड़ी लंबी सी विंडो खुल जाएगी, एंड यू मार्क दी प्रायोरिटी। किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है। चलिए मैं इसमें मार्क कर रही हूँ। BM is very hard for me, so that is the first priority that I have, so I am marking this। तो मैंने इसको कैसे सेलेक्ट किया, मैंने उस बॉक्स को सेलेक्ट किया, फिर मैंने 1 नंबर को सेलेक्ट किया, एंड 1 नंबर इज विजिबल ओवर देयर। मैं BL को करके दिखाती हूँ। मैंने BL के बॉक्स को सेलेक्ट किया, सेकंड को सेलेक्ट किया, और वो अपने आप BL के आगे आ गया।
CA I want to prioritize third, so third. ME I want to prioritize fifth, so let's say fifth. माइनर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसकी तरफ तो हम सोचते भी नहीं ये बेचारी होती क्या है, सो इट हैज द सिक्स्थ ऑप्शन. Business statistics, very difficult paper, so we have lot of practical, lot of learning, but still I know the basics, so I am very comfortable with that. So BS paper is there. क्या ये समझ में आया how I use this mark? Yes please, will you able to do it with me? Yes, ma'am. Okay. अब MPOB के अंदर मैं बताना चाहती हूँ आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि मुझे तो आईपी के अंदर जितना लेंदी है जितना बकवास है सब लिखना आता है. सो आई एम वेरी हैप्पी. कौन से वाली इमोजी यूज करूं? आई एम वेरी हैप्पी. मैम मेरी बैक आई एम यूजिंग दिस वन. FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो डिफिकल्ट टू लर्न, सो डिफिकल्ट टू अप्लाई, सो आई एम क्राइंग आई कांट लर्न. ME eco is okay with me, I can do it, so I have a neutral one. BC जितना मर्जी पटपट बुलवा लो हमसे, तो हम तो तैयार हैं. So this is the way you can use this mark option, and mark option obviously will depend upon the priorities you have. If you want to use this kind of mark option, क्योंकि मैंने अभी ना फूड आइटम्स बताई हैं, ना बिजनेस बताया है, ना कुछ बताया है, but yes, from this I can use one option. For this GGS IPU I am using this one, दिस बुक वन, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा सा लगा ये इसके साथ लगा के. देन आई लाइक दिस वन, क्योंकि मुझे अच्छा सा लगा, जरा थोड़े मेडल वेडल से लग जाएंगे इसके अंदर. सो आई हैड ब्यूटिफाइड इट, आई हैव क्रिएटेड द स्मॉल आइकन्स बाय यूजिंग द मार्क. सो दिस इज माय मार्क ऑप्शन एंड दिस इज द इनबिल्ट ऑप्शन, और ये डिफरेंट रिसोर्सेज इसके अंदर गिवन है टू यूज इट. शैल आई मूव टू माय नेक्स्ट पार्ट, क्लिप पार्ट? यस प्लीज बताइए, यहां तक सब समझ गए हैं कैसे करना है इसको ऐड? यू हैव टू जस्ट क्लिक द बॉक्स, click the item you want to insert and it will be there. Okay, clip art. Clip art is the easiest one. It has a very long option, so we will use it. ये देखो आप लोगों ने जब यहाँ पे clip art option करा होगा, ये आइकन आया होगा, this one. तो वो आपसे पूछ रहा है जनरल क्लिप आर्ट्स की ऑप्शंस देखनी है तो आई हैव जनरल एक्सप्रेशंस, एनिमल्स की देखनी है तो आई हैव एनिमल्स, सी लाइफ, इंस्पेक्ट. बिजनेस की देखनी है तो यस आई हैव ऑफिसेज आल्सो, तो थोड़े थोड़े क्लिप आर्ट मुझे मिल जाएंगी. बट क्योंकि मैं आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस बना रही हूँ, सो आई प्रेफर दिस एजुकेशन वन. आई एम यूजिंग दिस. तो जैसे ही मैंने एजुकेशन ओपन किया, देखो मुझे ये सारे मिल गए हैं. अब मुझे बताया गया था बेनिफिट्स के अंदर, नाउ आई वांट टू यूज दिस. मैं नोट्स बनाऊंगी, आई एम वेरी मच रेगुलर इन दिस. तो देखो इसके अंदर मेरे में वार्निंग आ गई दैट आई कांट यूज दिस बिकॉज आई एम यूजिंग द फ्री वर्जन. तो थोड़े से क्लिप आर्ट आप यूज कर पाओगे. जैसे देखो मैंने ये मग वाला, ट्रॉफी वाला उठाया, आई हैव जस्ट ड्रैग्ड इट एंड ड्रॉप्ड इट, तो आई कैन यूज इट. मैंने ये मेडल जैसे ही क्लिक किया तो ऑप्शन में आ गया जी आप ये यूज नहीं कर सकते हो. तो फ्री वर्जन के अंदर आप हो सकता है थोड़े थोड़े यूज कर सकते हो. बिकॉज आई एम लाइकिंग दिस वन, सो आई एम पुटिंग दिस ट्रॉफी इन द सेंटर. अब ये बहुत ही बड़ी लग रही है मेरे सारे डायग्राम्स के हिसाब से, सो आई एम कीपिंग इट स्मॉल, और मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है जस्ट टू मेक इट मोर ब्यूटिफुल. ये बेचारा इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है? चलिए इसको यहीं लगे रहने देते हैं. अब देखते हैं क्या इसमें से मैं कुछ और यूज कर पा रही हूँ. यस आई कैन यूज दिस. मेरे को स्टैटिस्टिक्स में बहुत जरूरत है भाई, तो आई जस्ट वांट टू पुट दिस इन फ्रंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ऑब्वियसली ये इतना बड़ा फोटो आ रहा है, इतना बड़ा तो मुझे चाहिए ही नहीं. तो अब मैं क्या करूं, इसको मैंने छोटा सा करा और यहाँ पे लगा दिया. लगा पा रहे हो क्या? Yes, ma'am. कर पा रहे हैं सब लोग मेरे साथ?
देखो मैंने लैंप सोचा था मैं बिजनेस मैथमेटिक्स में लगाऊंगी, बट वो कहता है नहीं, आपका फ्री वर्जन में नहीं चल पाएगा. So in this way you can use this festival, food, nature, people. Okay, so we will learn people from this. तो मुझे बताया गया कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं तुम लोगों के लिए एक प्रोफेशनल फोटो ड्रैग हो गई है, यहाँ लगा देती हूँ. बट ऑब्वियसली इतनी बड़ी तो अच्छी नहीं लग रही है, इसी के सेंटर में लगा देती हूँ. इज इट लुकिंग नाइस? तो क्लिप आर्ट हमको ये सिंबल, साइंस, इन सब चीजों में हेल्प करती है. इन दिस वे, फाइन विद दिस स्टेप? दिस स्टेप इज क्लियर? बोलो. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट वन, पिक्चर. अब इतनी पिक्चर तो इन्होंने दे दी, अब कौन सी पिक्चर लेनी है मुझे? तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने कोई पिक्चर सेव करके रखी है अगर, कैन आई वांट टू यूज दिस, आई वांट टू इंसर्ट दिस टाइप ऑफ पिक्चर्स. सो लेट अस से आई हैव क्रिएटेड वन लोगो और मुझे आईपी यूनिवर्सिटी का लोगो लगाना है. आप नेट पे ढूंढिए आईपी यूनिवर्सिटी का लोगो, क्योंकि मैंने अपने लिए डाउनलोड करके रखा है. सो मैंने लिख दिया. अब ये देखो जहां पर कर्सर था वो वहां पर आ गया. ऑल्दो आई डोंट वांट दिस लोगो ओवर हेयर एंड इन सच अ बिग फॉर्म. तो ये क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगी इसको? कैन इट बी मिनिमाइज्ड? सी, ये मिनिमाइज हो रहा है. मेरे वाले में ये पता नहीं बेचारा क्यों नहीं चल रहा है, बट येस इट विल बी मिनिमाइज्ड. आप पिक्चर जैसे मर्जी चाहें वैसे इसको पेस्ट कर सकते हैं और उतनी ही शेप में इसको ला सकते हैं. ये देखो ये ऑप्शन यहाँ क्लिक हो गई एंड आई वांट टू रिड्यूस इट. हो गया. सी, हो रहा है ना रिड्यूस? तो मुझे तो इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं चाहिए था. इट वॉज लुकिंग सो डर्टी. मेरे छोटे छोटे पिक्स हैं, इतना बड़ा बना दिया उसके अंदर. अरे भाई, मैं इसके अंदर चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती इससे बाहर निकलना. तो आई जस्ट क्लिक दिस बॉक्स, आई जस्ट क्लिक दिस पिक्चर एंड लेट मी ओपन इट. तो देखो वो बॉक्स के अंदर आ गया. अब की बार वो मेरी बात समझ गया और मेरे हिसाब से आ गया. तो जहां पर आपको पिक्चर चाहिए है आप कर्सर वहीं रखिएगा और फिर इंसर्ट कीजिएगा. देन इट विल लुक नाइस. उससे आपका डायग्राम भी खराब नहीं होगा और वो अपनी पोजीशनिंग भी अपने आप गेन कर लेगा. यहां तक समझ में आया? तो आप कोई सी भी ऑनलाइन पिक्चर जो भी आप चाहें इसके अंदर व्यू करना आराम से लगा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है. समझ में आया हाउ टू ऐड द पिक्चर? मैम ऐड ऑन करने का ऑप्शन कहाँ पे था अपने पास? चलिए दोबारा देखते हैं. मैंने ये बॉक्स को क्लिक कर लिया है क्योंकि मेरे को इस बॉक्स के अंदर डालना था दिस सिंबल, राइट? तो मैंने क्या किया, इस बॉक्स को क्लिक किया, पिक्चर को सिलेक्ट किया. आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस आईपी यूनिवर्सिटी सिलेबस लोगो. तो मैंने इसको करा ओपन एंड इट विल कम आउट, राइट? और उसको रीसाइज कर दिया मैंने. अब आप लोग बोलेंगे आईपी यूनिवर्सिटी का अगर हमें उतारना है तो कैसे उतारेंगे? आई होप आप लोगों को क्लियर है. नहीं क्लियर है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ एक बारी. तो देखिए मैंने ये वाला लोगो कैसे उतारा. मैंने बस नेट पे लिखा GGS IPU लोगो, और जो ये पहली इमेज आई थी बस मैंने इसी को क्लिक कर लिया, सेव एज इमेज कर दिया जैसे हम नॉर्मल करते हैं. दिस वन सेव इमेज एज, और ये सेव इमेज हो गई. उसको मैंने नेमिंग कर दिया GGS IPU लोगो एंड इट इज देयर. तो आप इसमें से आप चाहें ये वाला करना चाहें, आप ये वाला करना चाहें, आप ये वाला करना चाहें, यू कैन डू एनी वन.
Is it clear? Yes, please. Is this part clear? Yes, ma'am. सर पिक बड़ी आ रही है तो मैं छोटी कैसे करनी है उसे? अच्छा चलो मैं दोबारा दिखा रही हूँ, मेरी विंडो पे देखना। मैंने इसको क्लिक किया, इसको मैंने पिक्चर क्लिक किया, ये पिक्चर ओपन, ये देखो बिग आ रही है। इसी के चारों तरफ देखो ये बॉर्डर बना हुआ आ रहा है ऑटोमेटिकली, और मैंने इसको बोला रीसाइज, तो ये रीसाइज हो गई, जैसे हम नॉर्मल वर्ड वगैरह में करते हैं। उस ओके मैम, ठीक कर्सर है, को ठीक है ड्रैग मैम। करके छोटा। अब मेरे को ये पिक्चर तुमने दे दी है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सो आई विल डिलीट दिस बाय अगेन क्लिकिंग ऑन इट। ठीक है ना, मेरे पास तो दो दो लोगो हो गए, व्हाट विल आई डू विद दिस टू लोगोस। तो मैंने एक डिलीट भी कर दिया। तो आपने अगर कुछ ऐड करा है, डिलीट करना है, डिलीट भी हो जाएगा। ये कितना बकवास लग रहा है मेडल। सो लेट मी डिलीट दिस, रिमूव। अब अच्छा लग रहा है? अभी भी नहीं अच्छा लग रहा, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा। बस सिंपल लोगो विद आईपी यूनिवर्सिटी सिलेबस। नाउ आई वांट टू मूव टू माय नेक्स्ट टैब्स। यहां तक क्लियर है? टिल दिस क्लियर? आगे बढ़ो। यस मैम। अब मुझे तुमने ये इतनी कहानी बताई, बीएम के सिलेबस के अंदर टॉपिक क्या है, बीएल के अंदर टॉपिक क्या है, मुझे बता तो दो क्या है। तो मेरे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो बोला है एक ही पिक्चर में सब कुछ देना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज दी हाइपरलिंक। अब मैं हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करती हूँ? तो पहले ऐसा करती हूँ, मैं ढूंढ लेती हूँ नेट पे आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कहाँ पर है। जहां पर मेरी स्क्रीन तुम लोगों को दिखनी बंद हो जाए वहां बता दीजिएगा। वैसे मैंने अपनी एंटायर स्क्रीन अब शेयर कर रही हूँ, बिकॉज वी विल यूज लॉट ऑफ नेट। सो मैं गई नेट पे, और एज यूजुअल मैं लिखती हूँ GGSIPU बीकॉम ऑनर्स सिलेबस, एंटर। आई एम जस्ट ओपनिंग माय फर्स्ट टैब, और बीकॉम ऑनर्स सिलेबस PDF। मैंने क्या किया, इस लिंक को उठाना है, Control C। आई एम अगेन रिपीटिंग, जो भी लिंक आता है Control C। हो गया? पहुंच गए यहां तक? अब मुझे पूरा सिलेबस बताना है इस टैब के अंदर। आई वांट टू शो दिस PDF जो मेरे को नेट पे दिख रही है। सो मैंने हाइपरलिंक करा, हाइपरलिंक के अंदर बोला करंट डॉक्यूमेंट। भाई करंट वाला है या इंटरनेट एड्रेस है? इंटरनेट एड्रेस है ना मेरा, मैंने इंटरनेट से उठाया था ना ये एड्रेस। Yes, ma'am. ओके। और मैंने डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, मुझे हाइपरलिंक 1 वगैरह कोई नहीं देना है, मुझे देना है इसका नाम सिलेबस। सो आई हैव रिटन दिस डिस्क्रिप्शन दैट आई वांट टू ऐड दिस, एंड आई विल क्लिक ओके। तो देखो यहाँ पे एक ये बना हुआ आ गया, तुम्हारे में आ रहा है? चेक करो, ये लिंक सा बना हुआ आ रहा है। हेलो, ये बच्चा लो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मैम ये हाइपरलिंक नहीं आ रहा है कुछ भी ऑप्शन। अच्छा, तुमने पहले इसको टैब को सेलेक्ट किया था? जिस टैब के अंदर लिंक डालना है उसको सेलेक्ट कर लो पहले। चलो मैं दोबारा दिखाती हूँ। मैंने सेकंड सेमेस्टर के टैब को क्लिक कर लिया, राइट। फिर मैंने हाइपरलिंक को सेलेक्ट किया। अब मुझे पता था, मैंने तो इंटरनेट एड्रेस लिया है, सो आई हैव जस्ट टेकन दिस। हाइपरलिंक होम वाली स्क्रीन पर है ही नहीं। मतलब जैसे ये समरी के बाद एक बॉक्स बना है जिसको लाइक करेंगे तो उसमें मार्क पिक्चर एंड वैसे है। हाँ, और फिर मैम उसके मोर के नीचे आ रहा है, मोर में। अच्छा, तो देखो बेटा आप लोगों का मोर के नीचे आ रहा है। yes, आई मैम, मोर डोंट के नो नीचे कि भी है। माइट भी ये शायद अपने अपने लैपटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी शायद उसका फर्क होगा, क्योंकि मैंने तो इसके अंदर कुछ करा ही नहीं है। अच्छा हाँ, रुको रुको रुको, इसके अंदर फाइल नहीं, इस वाले में नहीं, वो तो दूसरे सॉफ्टवेयर में, इसमें तो नहीं है। सॉरी सॉरी, कभी ये व्यू में तो नहीं है? आउटलाइन टास्क पैनल, सेट सेलेक्टेड,
क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंज नहीं करे। वट एवर इज कमिंग ओवर हेयर इट इज ऑल बाय डिफॉल्ट ओनली। चलो मोर में आ गया, मिल गया सबको हाइपरलिंक वर्ड। तो लेटर से मुझे सेकंड सेमेस्टर वाले में हाइपरलिंक डालना है। मैंने हाइपरलिंक सेलेक्ट किया। मुझे पता है कि मेरा इंटरनेट एड्रेस है, तो इंटरनेट एड्रेस को कॉपी कर लिया था, पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया सेमेस्टर और ओके। तो ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे फोल्डर डालना है। आई डोंट वांट टू मेक दिस थिंग, मुझे तो पूरा का पूरा फोल्डर डालना है। तो हमें नॉर्मल आता है ब्राउज करना। लेटर से ये कोई फोल्डर पड़ा है मेरे ऊपर SDG नाम का, सेलेक्ट फोल्डर एंड दिस SDG फोल्डर विल बी देयर। आई एम जस्ट क्लिकिंग ओके। तो ये देखो ये लिखा आ गया पूरा का पूरा जी, आपने माइंड मैपिंग टूल्स का SDG का फोल्डर यहाँ पे डाला है। और जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा आपका USMS सिलेबस, बीकॉम ऑनर्स का जो पूरा का पूरा सिलेबस है दैट इज विजिबल ओवर हेयर। क्या आप लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर पा रहे हैं? बोलिए। यस मैम। यस मैम, हो गया। हाँ मैंने तो ये गलत फोल्डर अपलोड कर दिया। आई वॉन्ट टू डिलीट दिस, आई वॉन्ट टू चेंज इट, आई डोंट वॉन्ट एनी हाइपरलिंक ओवर हेयर। सो डू वी हैव दिस ऑप्शन टू रेक्टिफाई माई थिंग्स? तो मैंने यहाँ पे डिलीट क्लिक किया और क्लिक कर दिया ओके। तो वो जो वो बो बना हुआ आ रहा था हाइपरलिंक का वो हट गया सेकंड सेमेस्टर से। यहाँ तक पहुंच गए क्या सब लोग मेरे साथ? मैम डिलीट का एक और बार बता दो। ओके। अब मेरे को इसमें बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ क्लिक करा हुआ है। तो मैंने उस टैब को क्लिक किया जो हाइपरलिंक मुझे रिमूव करना है। हाइपरलिंक सेलेक्ट किया और ये डिलीट ऑप्शन दबा के ओके कर देना है तो डिलीट हो जाएगा। मैम ये नॉर्मली राइट क्लिक करके भी हो जाएगा ना इससे? बिल्कुल ठीक। अब तो तुम होशियार हो गए हो, सारा सॉफ्टवेयर तुम्हें पता लग गया मिनटों में, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की खासियत ही यही है, मजेदार बात ही यही है। अगला पढ़े अटैचमेंट्स। अब व्हाट इज अटैचमेंट? भाई क्या अटैचमेंट डालते हो तुम लोग कभी? तो लेटर से सेकंड सेमेस्टर में आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू अटैच। अब न्यू अटैचमेंट का पाथ पूछेगा, ऑब्वियसली उसको बेचारे को बताना तो पड़ेगा ही ना कहाँ से डालना है। तो लेटर से मैंने अपने पाथ को क्लिक किया और मैंने जो फोल्डर SDG वाला था जो हाइपरलिंक क्रिएट किया था उसकी जगह पे मैं अटैचमेंट में डाल रही हूँ। तो देखो क्या ये अटैच हो रहा है? तो कहता है नहीं, फोल्डर के अंदर से तुम बताओ तुम्हें क्या अटैच करना है। सो लेट अस से आई वांट टू अटैच दिस वन। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे एक फोटो अटैच करी है सेकंड सेमेस्टर में और इस तरीके से वो अटैचमेंट ओपन हो जाएगी यहाँ पे। सो दिस इज द केस। आपको लिंक डालना है या आपको प्रॉपर पूरी PDF या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, उसको हम बोलते हैं अटैचमेंट। तो अटैचमेंट भी डाल सकते हैं, ऑप्शन दिया है उन्होंने। लिंक नहीं है भाई, अटैचमेंट है, मेरे पास तो डॉक्यूमेंट डाउनलोडेड है, सो ओके आप अटैचमेंट डाल दो। नेक्स्ट वन नोट। आगे बढ़ जाऊं? बढ़ सकती हूँ आगे कि नहीं? हाँ या ना तो बोलो मेरे Yes, बच्चों। ma'am. ओके, नोट। अब नोट क्या होता है? व्हाट इज नोट? यूजुअली क्या मतलब होता है नोट का? मतलब क्या? पैसे तो नहीं है ये नोट, वैसे वाला तो नहीं है देखो। तो मैं क्लिक करती हूँ, हम ट्राई करते हैं तो शायद हमें समझ में आ जाए। मैंने 5th सेमेस्टर के टैब को क्लिक किया और नोट को क्लिक करा। अब वो कहता है नोट डाल दो यहाँ पे, वेरी टफ सेमेस्टर, नीड टू वर्क हार्ड। तो मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत ही मुश्किल सेमेस्टर है ये। नाउ अब जो ये नोट है, मुझे ये कितना छोटा है, मैंने लिखना है वेरी टफ और है इतना छोटा। सो आई कैन चेंज द स्टाइल, I can change the font, I can make it bold to make it more comfortable, I can make it italic, I can underline this
ऑब्वियसली दीज आर दी अलाइनमेंट्स, दीज आर योर कलर्ड पार्ट्स। आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं जो ऊपर फॉर्मेटिंग के पार्ट दिए हुए हैं। इनफैक्ट इन नोट ऑल्सो यू कैन इंसर्ट पिक्चर्स। मेरे को नोट दिखाना है लेकिन मुझे नोट लिखना नहीं है, आई वॉन्ट टू ऐड पिक्चर, तो आप इसके अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इतनी सारी ऑप्शंस दी हैं आपको इसके अंदर। देखो एक इंसर्ट करा है टाइमिंग, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने क्लिक करा ये टाइम आ गया, आज का आ गया कि आज 22 तारीख है, 9 सितंबर 2021। तो पता लग जाएगा जी आपने ये नोट कब करा था। सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली देयर एंड क्लिक ओके, दिस नोट विल बी देयर। देखो ये बॉक्स बना हुआ आ गया व्हेन यू विल क्लिक दिस नोट। सो वेरी टफ सेमेस्टर, नीड टू वर्क हार्ड, एंड व्हेन दिस नोट इज गिवन 22 सितंबर, जब मेरे पेपर हो जाएंगे आई विल डिलीट दिस नोट। क्या हमको नोट बनाना आ गया? यस प्लीज। आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे हाइपरलिंक यूज करने हैं, वो आ गया। अटैचमेंट, मुझे पूरी की पूरी पीडीएफ लिंक डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं तो आई कैन अटैच इट। मुझे अपने लिए नोट्स लिखने हैं, याद रहे छोटे छोटे नोट्स, so I had done that. Now I want to add some comments. तो मैंने 6 सेमेस्टर के टैब को क्लिक किया, मैंने कमेंट को क्लिक किया। ओहो, फ्लाई वे टू गो, बेटर से मैंने ये लिख दिया सेंट। या इसके अंदर मैं लिखना चाहती हूँ अबाउट टू कंप्लीट माई बैचलर्स, बिकॉज इट इज माइंड मैपिंग टूल। तो मेरी मर्जी, मेरा मन जो आ रहा है आई कैन राइट। तो मैंने ये कमेंट लिखे। अब देखो इसके अंदर कमेंट के बॉक्स बना आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नाम पे अक्षत जैन के नाम पे रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली उसका ओरिजिनल वर्जन आ रहा है। इस तरीके से ये कमेंट आ रहा है, राइट। कैन आई चेंज इट? कैन आई चेंज दिस? नो। तो आप इसको मॉडिफाई डिलीट यहां से कर सकते हो, डिलीट यहां से कर सकते हो, डिलीट यहां से कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते थे, रीटाइप कर सकते थे, बट जो ओरिजिनल वर्जन आपके कंप्यूटर का जिसके पास भी रजिस्टर्ड होगा उसका नाम वो कैप्चर कर लेता है सॉफ्टवेयर अपने आप। टैग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज टैग? फेसबुक पे भी टैग्स होते हैं, क्या होते हैं ये टैग्स? कपड़ों पे भी टैग होते हैं, ये क्या है टैग्स? व्हाट इज दिस? तो इसके अंदर ऑप्शन आएगा आपका कि आप इसके अंदर ग्रुप बनाना चाहते हो और उस ग्रुप के रिसोर्सेस करो, तो टैब मैनेजर करके खुलेगा। मैंने एक टैब बनाया, मैंने उसको नाम दिया टाइटल, ऐड ग्रुप। चलो एक और ग्रुप बनाती हूँ, क्या लिखूं? स्टूडेंट्स। और मैं यहाँ पे गई, मैंने फिर से लिखा यहाँ पे स्टूडेंट्स एंड ओके। तो कैन आई सी दैट टैग? तो जिन जिन लोगों को आप यहाँ पे लिखोगे उन उन लोगों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। क्योंकि मेरा वाला जो पोर्शन था उसमें मेरा टैग का रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मुझे लग रहा है मुझे इसको डिलीट कर देना चाहिए। दस ऑपरेशन कैन नॉट बी अनडन, आर यू श्योर टू डिलीट द ग्रुप? यस, आई एम श्योर। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। फिर उसके हमें बाद रिपीट करना टाइम वाला। हाँ जी, देखो मैंने इसके अंदर टैग ऑप्शन क्लिक किया और फिर टैग मैनेजर क्लिक किया। तो टैग मैनेजर के अंदर आप ग्रुप बना पाते हो, उस ग्रुप का नाम दे दिया, जैसे मैंने लेटर से टाइटल, ऐड ग्रुप कर रही हूँ, नया ग्रुप बना रही हूँ स्टूडेंट्स, और मुझे ये वाला ग्रुप डिलीट करना है, सो आई एम डिलीटिंग दिस ग्रुप, राइट। अब ये ग्रुप मैंने ऐड किया, टाइप टैग टेस्ट, देन प्रेस एंटर फॉर ईच न्यू टैग। तो टाइप टैग टेस्ट, क्या चाहते हो उसमें दिखे टैग टेस्ट में? डिफिकल्ट, ऐड ओके।
तो आपके टैगिंग में ये दिखेगा। अब वो राइट में जब आप क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन पूछ रहा है आपसे कि आप इसको रिमूव करना चाहते हो, रिमूव। तो टैगिंग इस तरीके से रिमूव भी हो जाती है। यूजुअली टैगिंग हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि माइंड मैपिंग के अंदर हम कोशिश करते हैं अपने आइडियाज को जनरेट करके फ्लोट करके उसको विजिबल करना। तो हमारे मेन टॉपिक्स थे हाइपरलिंक, अटैचमेंट, नोट, कमेंट, टैग। उससे पहले हमने सीखा मार्क, क्लिप आर्ट, पिक्चर। Before that, we have learned relationship, call out, boundary, summary. Next one and the interesting one, layout. ये लेआउट अच्छा लग रहा है तुमको जो हमने बनाया है? This layout. I am not liking this layout. You people are liking it. So can I change my whole layout? Yes. तो I can change it. अब देखो उन्होंने ऑप्शन दिया है, तो देखो मैंने जब ऑप्शंस क्लिक करा तो मुझे कुछ नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली जो फिल्टर्ड लेआउट है वो उसके हिसाब से अपने आप चेंज हो जाएगा। सो इट इज द इजीएस्ट वे टू चेंज योर लेआउट। आपको लेआउट पसंद नहीं आ रहा, ये चेंज कर दो। आपको लेआउट ये वाला अच्छा लग रहा है तो देखो ऊपर नीचे भा दिए मैंने सारे सेमिस्टर, राइट लेफ्ट की जगह पे अब अप डाउन में आपको विजिबल होंगे, दिख रहे हैं। सो आई हैव चेंज द होल लेआउट विदाउट इवन चेंजिंग अ सिंगल थिंग। मैंने ना ड्रैग किया, ना ड्रॉप किया, ना राइट किया, ना लेफ्ट किया। सो दीज आर इनबिल्ट लेआउट, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब जिनके आगे प्रो लिखा है, दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर द फ्री वर्जन। नेक्स्ट टैब, नंबरिंग। कोई नंबर देना है। अब देखो नंबर में ऑप्शन है कि 1 2 3 रोमन नंबर, स्मॉल रोमन, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी, ये 5 ऑप्शंस दी हैं। फिर आपसे नेक्स्ट टैब पे पूछिए किसको नंबर देना है। मतलब जो भी क्लिक करोगे, लेवल 1 को, लेवल 2 को, लेवल 3 को। सो लेट मी चेक व्हाट डू यू मीन बाय दिस लेवल 1 2 और 3। सो लेट अस से आई एम यूजिंग दिस वन। देखो कहां पर क्लिक हो गया अपने आप, मैंने 1 2 3 लिखा और नंबर लेवल 1 पे आ गया। मेरे को तो नहीं चाहिए था ये नंबर 1 लेवल पे, ये गलत है। एक्चुअली आई वांट दिस एट नंबर 2। तो अब ये देखो कोई चेंज हो गया क्या तुम्हारे नंबर 2 पे? दिख रहा है I1, I2, I3, I4, I5, I6 कि I1 जो पहला था आपका उसके अंदर अब 6 सेमेस्टर के हैं, तो मुझे टाइप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कैन डू इट। लेट अस से आई एम रिमूविंग। तो मैंने पूरे के पूरे रिमूव कर दिए और मैं दोबारा से देना चाहती हूँ ओनली एट नंबर 2। तो मेरे ये नंबर 2 लेवल पे इस तरीके से सब वाले सब पे आ गए हैं, खाली इस पे नहीं आए, पूरे चार्ट पे ये विजिबल हैं। दिख रहे हैं आपको लेवल्स? हम नंबरिंग तो लेवल 1 पे भी हुई है नहीं मेरे तो नहीं हुई। मैम। लेवल 1 तो सेमेस्टर है ना, क्योंकि पिछली बार आपने लेवल 1 किया था तो सेमेस्टर पे ही नंबरिंग आई थी। अच्छा वो रिवर्स हो गया होगा ना, एक मिनट। ओके सो वी विल एडिट दैट। अब हमने लेवल 3, वो कहते लेवल 3 है ही नहीं, लेवल 2 इज देयर एंड लेवल 1 इज देयर, तो मैंने 1 पर छोड़ दी। अच्छा हाँ, अब ये हमसे गलती हो गई तो अब मुझे इसको सुधारना है। तो मैं एक काम ये कर सकती हूँ, सबको रिमूव कर देती हूँ। और ये सारे रिमूव क्यों नहीं हो रहे? हो गए। अब ये रिमूव हो गए हैं और इस पे दोबारा से आप चलाओ, लेटर से 1 2 3 और नंबर 2 पे आ गए क्या? ये आ जाएंगे आप लोगों के, ये इसी तरीके से होता है। अच्छा वो बीसी सिलेक्टेड है तो इसलिए नहीं आ रहा, ये आ जाएंगे। remove number and let me take it to level 3। तीसरे पे है ये,
तो दूसरे पे भी आ रहे हैं बट वो हट जाते हैं, एडिट हो जाएंगे आराम से। अब उसके बाद ये नेक्स्ट टैब आपका हाइट वेट का है। इफ यू वांट टू रीसेट दिस, जैसे हम लोगों का वर्ड में भी होता है हाइट वेट, तो ये इस तरीके का है। ऊपर वाले टैब्स हो गए खत्म। अब इस वाले टैब पे आ जाओ। राइट में जो पैनल आ रहा है, मेरे राइट में देखो एक ब्रश पेंट आ रहा है। जब आप लोग इस ब्रश पेंट को क्लिक करोगे तो हेडिंग आ जाएगी पेज फॉर्मेट। मुझे ये जो पेज है ये बहुत ही डल लग रहा है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस थीम। तो मैंने देखा, जब मैंने इसको इंसर्ट किया तो मैंने देखा, ये देखो इतनी सारी इनबिल्ट थीम्स हैं। आई कैन चेंज इट लाइक दिस, आई कैन चेंज इट लाइक दिस, आई कैन चेंज इट लाइक दिस। दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी द चेंजेस? These are automatically coming. I am just clicking that theme. मैम रिपीट। क्या बच्चे? बोल बोल। मैम रिपीट करूं? ठीक है। देखो ये ब्रश पेंटर दिख रहा है तुम्हारे में यहाँ पे? यस मैम। हाँ, तो इसको क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी, ये पॉपअप हो जाएगा साइड में पैनल, जिसकी हेडिंग है पेज फॉर्मेट। उसमें मैंने पहला टैब बताया, दिस वन। तो जब मैं इसको क्लिक करती हूँ, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी। मैंने जो डायग्राम बनाया है, आई वांट टू चेंज द थीम। तो थीम कैसे चेंज कर सकती हूँ? ये देखो, आई हैव टू जस्ट क्लिक दैट बटन एंड द थीम विल बी चेंज। आई हैव टू जस्ट क्लिक दैट बटन एंड थीम विल बी चेंज्ड। Can you see changes on my window, on my panel? देखो। So this is the easiest way to change the theme. मुझे स्क्रैच से काम नहीं शुरू करना होता इसके अंदर कभी भी। ये ऑटोमेटिकली थीम्स ले लेता है। ये देखो, बैकग्राउंड कलर भी ले लिया जी। मेरा पूरा बैकग्राउंड चेंज कर दो, ड्रॉप्स थीम का चेंज ऑप्शन कर कहाँ था? दो। एक बार दोबारा बता देना, थीम का ऑप्शन। ये रहा, ये वाला, दिस इज द फर्स्ट बटन। ये जो 4 फ्लोट वाला बना हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो थीम लिखा हुआ भी आ रहा है। जब इसके कर्सर को ड्रॉप करोगे तो ये थीम्स आ रही हैं। दिस थीम्स आर कमिंग कमिंग। ये देखो, आई हैड जस्ट क्लिक्ड इट और ये देखो ये और ब्यूटीफुल हो गया। उसके अंदर जो थीम्स थी वो इंसर्ट हो गई इसके अंदर, तो वो अच्छा बन गया। ये हो गया दिस वर्जन। नेक्स्ट वन, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं लेआउट में। तो सेम थिंग इज देयर। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो आप इनको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। तो सेम बटन दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज द कनेक्टर स्टाइल। आपने जो कनेक्टर्स बना रखे हैं उनके पर्टिकुलर स्टाइल हैं ये देखो, मेरे कनेक्टर चेंज होते जा रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? कनेक्टर मींस जो एरोज बने हैं वो चेंज हो रहे हैं। अभी मेरा ये वाला चल रहा है। वो कह रहे हैं आर्क लगाना है तो ऐसे दिखेगा, लाइन लगानी है तो ऐसे दिखेगा। सो दिस वुड बी माय कनेक्टर्स। नाउ व्हाट इज दिस 1 2 3? सो इट इज अगेन द सेम वन जो हमने ऊपर नंबरिंग में सीखा था। बिल्कुल वो ही चीज है ये वाली दोबारा से। सो आई डोंट वांट टू पुट एनी नंबर, आई हैव जस्ट रिटन रिमूव नंबर। तो ये 4 बॉक्सेस ऊपर आए। Then we have the background. You want to color your background because it is looking very dull. So, okay, yellow is looking very bright. What about green? Dark green. So, a number of colors are available. Whatever you want to use, you can use it. हाँ भाई, कोई बैकग्राउंड कलर अच्छा लग रहा है क्या? बता दो, मैं वहीं रुक जाऊंगी। जो भी तुमको अच्छा लग रहा हो। ये वाला कर दूं? डल डल तो नहीं? चलो। सो वी हैव पुट दिस थीम। तो मेरा ब्यूटिफिकेशन हो गया, मेरा पेज भी पूरा बन गया, कितना सुंदर ब्लू ब्लू हो गया बिना कुछ करे। बैकग्राउंड पिक्चर, अब जो ये मेरा विजिबल है, आई वांट टू इंसर्ट द पिक्चर। तो आप इससे क्लिक करेंगे एंड इट विल बी इंसर्टेड। वो देखो कि आपको ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, ऐसा बैकग्राउंड चाहिए, तो ब्लू थीम इज देयर बट उसके साथ बैकग्राउंड्स आर गोइंग ऑन। आई डोंट वांट टू कीप एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड। बारिश हो रही है, हमारे बच्चे ने तो जिस दिन से कोर्स ज्वाइन किया उस दिन से उनके दिमाग में बारिश हो रही है। सो दीज आर द डिफरेंट बैकग्राउंड्स
which is inbuilt in this. You can use any one if you want. I'm not using any one. Then you have this one. You want to remove your background. तो वहां पर option नहीं है remove करने का. There is the single tab which is given remove it. तो मेरा जो background blue color का इतना सुंदर लग रहा था मुझे, अब वो remove हो गया है. So I am putting my pink background. Now what is this? ये क्या है? What is this? क्या लगता है आपको? Watermark. Very good. Watermark. So I am using this, but मुझे confidential word नहीं लिखना. Can I edit this watermark? So yes, you can customize the watermark. जो भी picture आपने select करी, जैसे मैंने वो टेढ़ा confidential select किया, but I want to write down the name. Let us say my name, Rachna Jain, and my full name is Dr. Rachna Jain. क्योंकि ये मेरा confidential है, I want to change the font also. So you can change it over here. Size is automatic. I want to change the color also. So yes, you can change it. I want to put this watermark in print, blueprint, semi print, diagonal रखना चाहती हूँ, horizontal. I guess watermark मेरा diagonal ज़्यादा अच्छा लगेगा. So let me apply my watermark and let me think. Oh, so this is visible. Whatever I had typed, it will be there, and it is required क्योंकि जितने भी हम business plans बनाते हैं वो confidential होते हैं, तो watermark is basic need of that. अब मुझे ऊपर थीम नहीं मिल रहा था क्योंकि थीम इतनी सारी है, मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो इन्होंने एक टैब और बना दिया थीम के नाम का. कहते हैं वहां नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लो. सो इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग्स. ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतना बड़ा बादल सा बन गया है. आई एम नॉट लाइकिंग दैट थीम, सो आई एम कीपिंग इट ऑन द ओरिजिनल वन. Then there are more themes, and in this it is written create theme. Create theme यानी आपने अपनी मर्जी से कोई थीम सेलेक्ट करी, कोई कलर सेलेक्ट किए, कोई इफेक्ट सेलेक्ट किए जो इसमें इनबिल्ट थे, और वो उनका तीनों का मिक्सचर अवेलेबल नहीं था. दैट इज द क्रिएट थीम. बट क्रिएट थीम इज नॉट अवेलेबल इन द फ्री वर्जन. इट इज नॉट अवेलेबल इन दी फ्री वर्जन. तो इसके लिए हमको प्रो वर्जन पे जाना पड़ता है. सो लीव दैट पार्ट. एंड व्हाट इज दिस ए? कुछ हो रहा है क्या? मैं ऊपर नीचे चला रही हूँ तो ध्यान से देखना. Font change. So font change हो रहा है. You people are thinking that earlier it was looking good and now it was looking good. So I am keeping it Arial black. I am liking this one. तो मैंने इसको और ब्लैक कर दिया. नाउ आई वांट टू चेंज द कलर पैटर्न. मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था पहले. सो whatever color pattern you want to use, you can select it and it will beautify your presentation more. After that color pattern, अब उसके बाद कहाँ गई मेरी सारी? हाँ, उसके बाद ये रेनबो सारे कलर पैटर्न है. ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, सिंगल कलर चाहिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा सेल्फ कस्टमाइज पे. ये वाला आपको अवेलेबल नहीं है. दिस वन सिमेट्रिकल, दिस इज नॉट अवेलेबल. तो ये हमारी रेनबो कलर्स की कुछ स्पेसिफिक थीम्स हैं जो इसके अंदर हैं, बट वो प्रो वर्जन में अवेलेबल है. सिमिलरली आपको इफेक्ट्स चाहिए तो कुछ इफेक्ट्स तो हमने उठाए हुए हैं, और जो और टेढ़े मेढ़े कर्व के इफेक्ट्स हैं, डायगोनल इफेक्ट्स हैं, वो हम नहीं कर सकते सॉफ्टवेयर के फ्री वर्जन में. प्रो वर्जन में अवेलेबल है. सो दिस टैब इज क्लियर, दिस अपर टैब इज क्लियर. आउटलाइन वी हैव ऑलरेडी डन. कर चुके हैं ना हम आउटलाइन? क्या ये स्टार मार्क वाला हमने किया है? दिस मार्क. Yes, तो ma'am. मार्क इज अवेलेबल एट 2 प्लेस. देन दिस फ्लावर वन वी हैव ऑलरेडी डन. क्लिप आर्ट है ये. देखो मैंने एजुकेशन प्रोफेशन पहले सेलेक्ट किया हुआ था, सो इट इज अगेन सेलेक्टेड. अदरवाइज यू कैन गो इट ओवर देयर एंड यू कैन चूज एनी वन. एंड व्हाट इज दिस वन? टास्क. So this is the task which is not available to you. I will show you now. ये कब available होता है. यहाँ तक क्लियर है? जितने हमें आइटम्स बोर्ड पे दिख रहे हैं हमने सब कर लिए हैं. अब पेज स्टाइल में भी थीम है, कस्टम थीम है, फॉन्ट है, थीम कलर, रेनबो, हैंड ड्रॉन स्टाइल. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टैब्स.
बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, रिमूव बैकग्राउंड, वाटरमार्क, क्या ये कर लिया है हमने? कर चुके हैं कि नहीं? यस मैम। So we have already covered this part. Slide show. Do we supposed to do the presentation in the slide show? So slide preview. तो इन्होंने बहुत सारी ऑप्शन दिए हैं, बट प्रो वर्जन के अंदर चलती है मैक्सिमम ऑप्शंस। तो देखते हैं ये क्या है। तो वो कहता है जी आपका मैं ऑटोमेटिकली स्लाइड बना दूंगा, जैसे जैसे आपने काम करना शुरू करा था वैसे वैसे मैं स्लाइड बना रहा हूँ। ये देखो मैंने पहले आपके सेंटर पॉइंट की बना दी, अब मेरे को तो ये नाम नहीं पसंद आ रहा, सो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी एंड आई कैन एडिट इट। फिर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, एवरीथिंग इज विजिबल। सो कैन आई लुक एट माय स्लाइड शो? तो इन्होंने ऑप्शन दिया यस यू कैन लुक एट दिस। राइट क्लिक करोगे, पहला फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा टैब खुल गया, सेकंड इज ओपन, थर्ड इज ओपन, फोर्थ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई अब इसके आगे हम नहीं दिखाएंगे, तो ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है आगे का। नाउ व्हाट इज दिस? तो अब आपको एडिटिंग करनी थी, मेरा ये सिलेक्टेड था, आप इसको रीराइट करना चाहते हो तो उस टैब का नाम वो ही आ जाएगा। ये आपके नॉर्मल डिलीट द एंटायर स्लाइड शो, डिलीट द सिलेक्टेड स्लाइड। तो ये आपके नॉर्मल अगर आपको पीपीटी क्रिएट करनी है विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग any single task, it is automatically created by this software। और इसी के ये वर्जन दिए हैं, ऑटो क्रिएट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, स्लाइड शो स्टार्ट कर दो। व्हाट इज दिस? ट्रांसवर्स टॉपिक्स और ट्रांसवर्स ब्रांचेस। इसमें लिखा है शिफ्ट प्लस F5 दबाने से हम दिखा देंगे आपको। सो दिस इज शिफ्ट प्लस F5। सी इस तरीके से ये आती है एक 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 डिटेल। तो आप इसके अंदर सब कुछ कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में बता सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग इवन अ सिंगल टास्क। तो जो आपके अलग अलग ब्रांचेस हैं वो एक एक करके हाईलाइट होते जाएंगे और अपना प्रेजेंटेशन आपका तैयार हो जाएगा। फुल स्क्रीन पे ऑब्वियसली दिखाना चाहते हो तो फुल स्क्रीन वर्जन इज अवेलेबल। एक्सपोर्ट करना चाहते हो अब इन पीपीटीज को तो एक्सपोर्ट हो जाएंगी पावर पॉइंट पे। पीडीएफ की तरह एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो पीडीएफ सेव हो जाएगा। प्रिंट स्लाइड्स करना चाहते हो क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली प्रिंट स्लाइड्स हैं तो ये प्रिंट फॉर्म में आ जाएंगी। सो दीज आर द टैब्स दैट यू हैव टू बी यूज फॉर द स्लाइड शोज। तो ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड है फॉर द स्लाइड वर्जन। नाउ दिस इज द एडवांस वर्जन। गैंट चार्ट आप लोग यूज नहीं करते हैं, ये बेसिकली जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं डेटा प्रेजेंटेशन करते हैं, डिफरेंट फाइल्स होती हैं विद द डिफरेंट डेट्स एंड डेडलाइंस, वो इसके अंदर यूज होती हैं। यस आई वांट टू यूज वन मोर थिंग because this is very interesting over here. This is given brainstorming. So the shortcut key is F8 or otherwise you will double click it, you will get it. What is this? I am just giving you demo. Let us say my name is Rachna and I have student Sankalp over here. I have one student कौन कौन है? खुशी is there. I have one more student Avya is there and so on. तो मैंने क्या किया, मेरे माइंड में जितने आइडियाज आए थे, कैसे आइडियाज आए थे? डिफिकल्ट, टफ, ओ कह रहा है इससे ज्यादा नहीं डाल सकते आप, तो ये डाल दिए। अब मुझे इनको कनेक्ट करना था इससे, तो मुझे ये कनेक्ट ब्रांच, एंटर ब्रांच, ये सब करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई जस्ट ड्रैग इट एंड कीप इट ओवर हियर, ड्रैग इट एंड कीप इट ओवर हियर, ड्रैग इट एंड कीप इट ओवर हियर। तो आप लोगों के जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज हैं वो ऑटोमेटिकली इस विजन में दिखने शुरू हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? फाइंड एंड रिप्लेस, नॉर्मल जैसे आप लोग वर्ड पे करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, आई वांट टू रिप्लेस सेमेस्टर 1 विद सम अदर नेम, सो यू कैन यूज इट। केस सेंसिटिव है या नहीं है वो आप देख लेना और यूज कर लेना। स्पेल चेक का इसमें ऑप्शन है। फाइल रिकवरी, अगर आपने हिस्ट्री में कोई फाइल्स बनाई है तो यहाँ से रिकवर हो जाएंगी। व्यू तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है। जूम करना चाहते हैं, कितना जूम करना चाहते हैं, प्रेजेंटली 100% पर है, कितना पेज विड्थ हो, कितने पेज पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, होल पेज पर ये दिखे। सो यस इट इज विजिबल। इज इट विजिबल ऑन माय होल पेज?
देखो, Yes, ma'am. तो ये भी आपकी मर्जी है, आप कैसे दिखाना चाहते हैं. नाउ आई हैव डन ऑल द हार्ड वर्क. आई वांट टू सेव इट नाउ. So how we will save it? There are 2-3 options which is coming over there. Control S, save. तो मेरे को बहुत डर लगता है सॉफ्टवेयर से. आई वांट टू एक्सपोर्ट इट. तो अब एक्सपोर्ट की भी उसने मुझे ऑप्शन दी है. कैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हो? एज ग्राफिक, एज पीडीएफ, पीडीएफ फॉर्मेट में, पीएस फॉर्मेट में, ईपीएस फॉर्मेट में. ऑफिस की ऑप्शंस होती हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल. कैसे करना चाहते हो? सो लेट अस से टू मेक इट सिंपल, आई वांट टू एक्सपोर्ट इट एज अ पीडीएफ एंड लेट मी सेव. वो कह रहा है पेज साइज ऑटो ले लिया है मैंने. ओके ओके. अब वो कह रहा है मैं वाटर मार्क दिखाऊंगा अपने नाम का क्योंकि प्रो वर्जन नहीं है. सो लेट मी एक्सपोर्ट विद दिस नेम. बेचारा गुस्सा हो जाएगा वरना मेरे से. तो ये देखो, ये मेरा पीडीएफ ओपन हो गया क्योंकि मैंने ऑटोमेटिकली पीडीएफ वर्जन ओपन करके रखा था और उसने मुझसे परमिशन ली थी वाटर मार्क डालने की अपने नाम का. तो देखो कोने में उसने अपने नाम का माइंड मास्टर का सॉफ्टवेयर का वाटर मार्क डाल दिया है. Up till this is clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, one more thing. I want to do the collaboration online. ये तो मैं काम कर रही हूँ, मेरे को तो ये 6 सेमेस्टर लिखने थे तो लिख दिए. But let us say मेरा mind mapping tool is so tough that I want to make it online. Then how I will make it? तो मुझे अब इसके लिए एक नया खोलना पड़ेगा. मेरे साथ आप इंटरनेट पे आ गए हो? यहाँ पर आप टाइप करोगे. पीडीएफ में वो क्लिकेबल लिंक्स खुलते हैं. हाँ, पीडीएफ में भी खुलेंगे और पीपीटी में भी खुलेंगे. और अगर आप इसको एक्सपोर्ट करोगे पीपीटी और हो सकता है वहां पे आपसे कोई गलती हो गई हो, यू वांट टू एडिट दैट इज आल्सो एडिटेबल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस माइंड मास्टर दैट इट इज एडिटेबल इन पीपीटी. तो आपको दोबारा से माइंड मास्टर सॉफ्टवेयर पे जाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. It is a very advanced version. Now I want to share with you, मेरे को जो ये माइंड मास्टर का जो फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, I want to use it online. मैं चाहती हूँ मेरे साथ आप बच्चा लोग भी सेम फाइल पे काम करो. तो इसके लिए हमको यूज करना पड़ता है mindmaster.io. I am repeating mindmaster.io. और उसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो पहली ऑप्शन आएगी ट्राई फ्री इन वेब ब्राउजर. आई एम रिपीटिंग, ट्राई फ्री इन वेब ब्राउजर. इज इट कमिंग? सो लेट क्लिक इट. देखो क्या सेम टाइप ऑफ विंडो इज ओपन ओवर हेयर ऑल्सो. दिख रहे हैं? यस मैम. ओके, सो मैंने पहले वाले को ही क्लिक कर दिया है एंड ही इज आस्किंग फॉर माय ईमेल आईडी. और अदर ऑप्शंस आर देयर. यू वांट टू यूज इट विद गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एप्पल. आई एम यूजिंग गूगल क्योंकि मेरा ऑलरेडी साइन इन है. सो उसने लिख दिया सक्सेस. अब ये देखो, ये मेरा गूगल अकाउंट से साइन इन हो गया है और लेट अस से आई एम यूजिंग इट because I want to show this. Otherwise how will I invite you? या आप लोगों को मैंने टास्क दिया है 10 बच्चों को, ये ऑनलाइन कैसे करोगे? because this is required. So let us say मैंने एक बनाया है इसका और मैं बस गंदा गुंदा सा ड्रॉ कर रही हूँ जल्दी जल्दी just to show you. तो ये मेरा मैप बन गया है. अब मैं चाहती हूँ एडिटिंग मैं नहीं करूँ and my central idea is online collaboration with students. हाँ जी, अब मुझे इस ऑप्शन को, ये सारी ऑप्शंस हम पहले ही सीख चुके हैं, उन्हीं के शॉर्टकट नाम है, ध्यान से देखो. दो अनडू, फॉर्मेट पेंटर, ये टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स, ये फ्लोटिंग टॉपिक, ये रिलेशन, कॉल आउट, बाउंड्री, समरी, पिक्चर, राइट. ये आपका हाइपरलिंक, ये इसके अंदर नोट, ये सेम ऑप्शंस है सारी. हाइट, विड्थ, ऑटोमेटिकली इसमें भी 30-30 है और जब हमने वहां देखा था वहां भी 30-30 थी. ये सारा पैनल इज ऑल्सो सेम. नाउ हाउ विल आई एड यू? सो लेट मी एड यू ओवर हेयर. देखो ये सेव, एक्सपोर्ट, यहाँ पर ये जो 3 बल्ब लगे हुए हैं इसमें नीचे ऑप्शन आ रहा है कोलैबोरेशन. सो आई एम क्लिकिंग कोलैबोरेशन
ऑप्शन आता है इसके अंदर एडिटर। मुझे तो तुम लोगों को एडिटर बनाना है ना। क्रिएट अ लिंक, मैं चाहती हूँ तुम भी लिखो मेरे साथ, सिर्फ देखो नहीं। सो क्रिएट एन एडिटर एंड कॉपी लिंक। द लिंक हैज बीन कॉपीड, और मैं तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इस लिंक को डाल रही हूँ। लेट मी टेक यू टू द व्हाट्सएप ग्रुप। और चेक करना कि आप लोग भी ये फाइल देख पा रहे हो मेरे जैसे या नहीं। सो तो नहीं गए तुम लोग? किसी की भी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने माइंड मास्टर आयो मुझे नहीं दिख रहा है। माइंड मास्टर आयो नहीं दिख रहा। हाँ, एक मिनट रुक। देख मैंने क्या किया, मैं नॉर्मल गूगल पे गई और मैंने डाला माइंड मास्टर .io, एंटर किया। एंटर करते ही अपने आप सबसे पहला जो टैब खुलेगा, ट्राई फ्री इन वेब ब्राउजर, यू हैव टू क्लिक इट ऑन वेब ब्राउजर। पहुंच गया? हाँ भाई, मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर किया है। क्या आप लोगों में से कोई ज्वाइन कर पा रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका जीमेल आईडी ऑलरेडी है, ऑफिशियल अकाउंट है। सो यू कैन लॉग इन बाय दैट। देखो और चेक करो, विल यू एबल टू एक्सेस दिस फाइल? यू विल डेफिनेटली एबल टू एक्सेस इट। यस मैम। कर पा रहे हो? यहाँ पर वैसे मुझे दिख नहीं रहे हो, अदरवाइज ना यहाँ पे नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है कि कितने लोग सेम फाइल को देख पा रहे हैं। कोई और बच्चा एडिट करो एनी टॉपिक, स्टार्ट एडिटिंग। सो दिस इज द ऑनलाइन कोलैबोरेशन। और आप जो है इसको शेयर भी कर सकते हो ऑनलाइन वर्जन को। तो शेयर कैसे कर सकते हो? विद दी हाइपरलिंक्स, विद दी फेसबुक, विद ट्विटर, और ये विद पिन इंटरेस्ट। ये इस तरीके से, क्योंकि मैंने इनका प्रो वर्जन नहीं लिया हुआ है तो उन्होंने मेरे को मेंशन कर दिया आपके पास लिमिटेड एक्सेस है। सो दिस इज द वे दैट यू कैन डू दिस ऑनलाइन कोलैबोरेशन। आप इसको पब्लिश भी कर सकते हो, जो भी आप बताते हो। ऑब्वियसली ऊपर मेरे लिखा आ रहा है अननेम्ड फाइल, सो आई कैन राइट डाउन द फाइल, आई कैन राइट डाउन द डिटेल, आई कैन राइट डाउन द रेलेवेंट टैग्स, क्योंकि आजकल हैशटैग का जमाना है आप लोगों का, तो आप वो यूज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, एंड योर माइंड मैप विल बी पब्लिश्ड। सो दिस इज द वे। और वो टेम्पलेट में भी ऐड कर देते हैं लोगों के माइंड मैप, जब बहुत अच्छे माइंड मैप बनते हैं, जब उन्हें लगता है कि हाँ नए इनोवेटिव माइंड मैप्स बने हैं, तो जो हमने अभी टेम्पलेट देखा था लोगों के माइंड मैप्स, उसमें भी ऐड कर देते हैं ये मैम लोग। आप यहाँ से कुछ चेंज करोगे तो वो हमारे पास भी चेंज आ जाएगा उसका? आना तो चाहिए। देखो मैं यहाँ लिखती हूँ रचना, दिखा रहा है ना डॉक्यूमेंट हैज बीन मॉडिफाइड। फिर मैंने लिखा संकल्प। ज्वाइन करने के ट्राई कर रहे तो आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कोलैबोरेटर्स फॉर दिस फाइल हैव बीन रीच्ड। वो इसलिए हो गया बेटा क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये ऑनलाइन कोलैबोरेशन इज एन एडवांस्ड वर्जन, तो ये जो पॉइंट है ये उन्हीं लोगों के लिए यूज में आएगा जो ये वर्जन इसका खरीदेंगे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए यहाँ पे देखो कार्ट बना रखा है बाय नाउ, तो ये लिमिटेशन है उसकी। अगर वो सब कुछ ही फ्री में दे देगा आपको तो उसकी बेचारे की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? ओके, कैन यू सी दिस चेंजेस जो मैंने चेंज किए? हाँ या ना तो बोलो, जो लोग कनेक्ट कर पाए उन लोगों से पूछ रही हूँ। मैम कनेक्ट तो हो गया पर चेंजेस नहीं आ रहे। अच्छा, वो आ जाएंगे, वो शायद नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, राइट? वो इसी तरीके से मतलब हम काम करते हैं, बेसिकली यही पर्पस था मेरा इसको दिखाने का। सो दिस इज द वन सॉफ्टवेयर दैट आई टोल्ड यू इन डिटेल। देयर आर मोर सॉफ्टवेयर। आई वांट टू शो यू वन मोर सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, और उसका पोर्शन कैसे होता है। 5 मिनट तो दे दोगे ना एक्स्ट्रा? कोई इशू तो नहीं है ना?
क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आप लोगों के काम का है। मैं एक्चुअल में 2 सॉफ्टवेयर सिखाना चाहती थी। अगर आप ये लिखो draw.io डाउनलोड फॉर विंडोज, then you will get this software. I am writing draw.io download for Windows. पहला ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट वाला, दूसरा ऑप्शन आएगा सॉफ्टोनिक वाला। तो हमको सॉफ्टोनिक वाला डाउनलोड करना है, दिस वन। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा दिखेगा। आई वांट टू शो यू दैट सॉफ्टवेयर। ये दिख रहा है नीचे मेरे में 1 2 3 डॉट, दिस येलो वर्जन। आई विल ओपन इट फॉर यू। जब इसको ओपन करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है क्रिएट न्यू डायग्राम और ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम। सो लेट अस से आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एनी डायग्राम, सो आई वांट टू ओपन द एग्जिस्टिंग डायग्राम। अब वो मुझसे पूछ रहा है draw.io की कोई फाइल है तो आप दिखा दो मुझे। तो मैंने एक फाइल क्योंकि अपने ट्रायल वर्जन के लिए बनाई थी, सो लेट मी ओपन दैट सो दैट यू विल सी। ये देखो मैंने एक फाइल बनाई हुई है sdgdraw.io और ओपन करूंगी तो इट विल ओपन। मैंने बेसिकली ये फाइल बनाई थी। हमारे यहाँ पे देश में SDG गोल्स हैं, देर आर 17 SDG गोल्स। सो आई वांट टू क्रिएट दिस वर्जन कि मैं उन 17 मैंने ये गोले बनाए, एक बिग गोला बनाया और इसके अंदर भी मैंने ये हाइपरलिंक्स डाला है SDG की इंडिया की रैंकिंग कितनी है। अब क्योंकि मेरे पास जो ये सॉफ्टवेयर है यहाँ पर मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है, ये हाइपरलिंक नहीं खुलता है। बट आई वांट टू चेक जो मैंने हाइपरलिंक डाला है क्या वो ठीक है। तो मैंने क्या किया, draw.io के अंदर कैन आई वर्क इट ऑनलाइन। So there is one more option, draw.io online। और जो मेरा जो वर्जन जो मैंने आपको नीचे दिखाया ये ऐसे ही खुलता है, फ्लो चार्ट मेकर एंड ऑनलाइन डायग्राम सॉफ्टवेयर। दिस इज द बेस्ट वन टू क्रिएट द फ्लो चार्ट। ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम, मैंने फिर से यही कहा। तो ये नेट पे अब ओपन हो जाएगा मेरा। मैंने ये नेट पे इंटरनेट पे ओपन किया draw.io ऑनलाइन और आई वांट टू चेक वेदर दिस हाइपरलिंक इज वर्किंग। सो लेट मी चेक। मैम सॉफ्टोनिक वाला डाउनलोड करना है। सॉफ्टोनिक वाला, माइक्रोसॉफ्ट वाला डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वाले के जो फीचर्स हैं वो चलते ही नहीं है फ्री में। और जो सॉफ्टोनिक वाला है वो पूरा का पूरा चलता है। जैसे हमने अभी माइंड मास्टर में देखा, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो कह रहा है प्रो वर्जन में ये चलेगा वो चलेगा, बट सॉफ्टोनिक वाला कहता है पूरा चलेगा। तो मैंने एक लिंक उसमें क्रिएट किया हुआ था और उस लिंक से देखो अब मैं इंडिया का स्टैट्स बताना चाहती हूँ SDG गोल्स का। तो गोल वाइज परफॉर्मेंस कितनी है मेरी इंडिया में और ओवरऑल स्टेट वाइज कितनी है, मैंने लेटेस्ट 2020 का जो लिंक था वो इसमें इंसर्ट कर दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस वन। इसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, ये बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है बट वेरी यूजफुल टू लर्न। लेट अस से आई वांट टू क्रिएट दिस डायग्राम। एक फ्लो चार्ट बनाना है मुझे। I don't want to use this one, तो मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। आप लोग डेमो देख लीजिए so that you will make it. It hardly take 5 minutes to make a diagram. Create new. Let us say I am taking for you blank diagram और मुझे एक डायग्राम बनाना है। ये शेप्स इंसर्टेड है इसके अंदर, ये बड़ी छोटी हर तरीके से हो जाती हैं और इसके अंदर मुझे लिखना है ऑनलाइन क्लासेस आर सक्सेसफुल। अब ये देखो ये इंडिकेटर खुद ही दे रहा है कनेक्शन। मैंने यहाँ पे क्लिक करा और एक गोला सेलेक्ट कर लिया तो ये एरो भी अपने आप लग जाते हैं। वर्ड में तो हम एरो ही सेट करते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, इसके अंदर कुछ नहीं करना। तो मैंने इसमें यहाँ पर भी अब मैं एरो में कुछ लिखना चाहती हूँ तो ये आ जाएगा, यस वाला लिखते हैं, यस, गुड। अब मैंने यहाँ पर एक एरो डालना चाहती हूँ क्योंकि मैं तो फ्लो चार्ट क्रिएट कर रही हूँ। वन मोर गोला, तो एरो इज देयर एंड आई वांट टू राइट इट ऑन एरो। आई जस्ट क्लिक द डबल क्लिक, नो,
नो कंसंट्रेशन। तो वो कह रहे हैं, अब ये देखो मेरी स्पेलिंग एरर भी पकड़ लेता है, वो इतना होशियार है, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन की स्पेलिंग गलत डाली है, तो कह रहा है भाई स्पेलिंग सही कर लो तुम। तो मैंने स्पेलिंग सही कर ली। अब मैं यहाँ पर एरर बनाना चाहती हूँ, तो ये कनेक्टर अपने आप विजिबल है, इसको क्लिक करूंगी और लेट अस आई एम मेकिंग दिस ट्रेपीजियम एंड आई वांट टू यार प्ले गेम्स ऑनलाइन। मैं इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पा रही बिकॉज आई एम प्लेइंग गेम्स। देन आई एम मेकिंग वन मोर करेक्टर। हाँ भाई, चैटिंग and surfing. Then I am making one more connector. क्या लिखते हैं? Environment. अब मेरी environment की spelling भी गलत है। Environment disturbing. Then I want to make, भाई ये environment की spelling क्या होती है, कोई बता दो। Environment disturbance at home लिख देते हैं। Disturbance at home। और मैंने ये बोला so focus my child। और अब मैं चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन क्लासेस से नीचे तक कनेक्ट हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पे एरोज हैं, कनेक्टर्स हैं, मेरे पास ऊपर भी एरोज हैं और कनेक्टर हैं। मैं इसके अंदर भी इमेज डाल सकती हूँ, इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल सकती हूँ, इसके अंदर मैं लिंक्स डाल सकती हूँ, शेप्स डाल सकती हूँ, लेआउट आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, एडवांस वर्जन्स भी हैं इसके अंदर। तो ये आपका फ्लो चार्ट, हार्डली 5 मिनट में मेरा फ्लो चार्ट पूरा रेडी हो जाता है। अब ये फाइल भी सेव होती है, तो फाइल सेव एक्सपोर्ट एज पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ मेनली हम इस तरीके से यूज करते हैं। यूआरएल भी क्रिएट हो जाता है और एचटीएमएल फाइल भी बन जाती है। सो draw.io वी आर यूजुअली यूजिंग इट फॉर मेकिंग दी फ्लो चार्ट्स। और इसी वजह से जब भी आप इस ऐप को ओपन करते हो, इसमें मेंशन भी यही होता है, टू मेक दी फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इजियर। Anything that you want to ask? No? Any doubt to anyone? Or shall I over this? मजा आया कि नहीं, ये तो बता दो। कुछ नई चीज सीखी आज आपने? लूसी चार्ट्स करके एक ऐप है, मैं आप लोगों के लिए एप्स लिख रही हूँ। ये सारी एप्स जो हैं हमारे माइंड मास्टर की हैं। draw.io, lucid charts, फ्री प्लेन, और मुझे जो आज तक सबसे अच्छी ऐप लगी है जिसपे मैंने आज पूरी क्लास ली, माइंड मास्टर। पर्सनली आई फील मैंने ये चारों एप्स यूज करी हैं, सो पर्सनली मुझे माइंड मास्टर इज द बेस्ट वन, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन, गैंट, स्लाइड शोज, इंसर्ट ऑफ होल डॉक्यूमेंट, लिंक्स। सो आई पर्सनली लाइक दैट वन। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू वांट टू से एनीथिंग दैट्स ओके। मैम अदर हाँ जी, मैम ये आपके यूट्यूब चैनल पे इनकी सबकी वीडियो आती है ना? हाँ जी बिल्कुल आती है, यूट्यूब चैनल पे वीडियोस आर अवेलेबल फॉर मैम यू। मेरी एक क्लास मिस हो गई थी, उसकी मेरे को वीडियो चाहिए थी, मैं वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, तो मैं बोल दूंगी जो हमारे कन्वीनर हैं उनको कि दे विल अपलोड इट। थैंक यू मैम। ओके, गुड बाय टू एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा। अटेंडेंस अटेंडेंस तो आई विल